Good morning, children. This is Karan Sai. You are watching Facts Being Talk. Today we are going to start a new chapter of class 8. So, every class 8 student, please open your book. We are going to start the next chapter of your book. We have already studied two chapters in the geography, two chapters in history. Today we are going to start the second chapter of civics. So please go to page number 240 and we are going to start this chapter. Please open your book on to 240. Secularism and the Indian Constitution. So we are going to start this chapter. So secularism and the Indian Constitution. Under understanding secularism, what does that mean? Secularism means the country or the way any society, those who doesn't follow any state religion or any national religion, that has the space for all the religions, that has the respect for all the religions, that is known as a secular country. So religion plays a key role in the life of the people, and when religion shakes hand with politics, it can give way to the dangerous situations. जब धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, धर्म और राजनीति एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो बहुत ही ये खतरनाक रूप ले लेता है. Religion in politics often leads to the dominance of one group over the other, discrimination, exclusion, and persecution of people who do not follow the majority religion. Let's understand this with the example of Sri Lanka. तो यहाँ पे दिया गया श्रीलंका का उदाहरण के तौर पर क्या होता है कि कई बार जब अगर पॉलिटिक्स और धर्म एक साथ मिला दिया जाता है, तो जो मेजोरिटी ग्रुप होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सपोज दैट श्रीलंका की, तो वहां पे दो तरह की कम्युनिटीज रहती थी. एक थी सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी थी तमिल कम्युनिटी. तो जब तमिल कम्युनिटी वाले लोग थे वो कम थे और सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा थी, इन लोगों ने क्या किया कि जो ज्यादा थी संख्या में, उन लोगों ने दूसरे ग्रुप को टॉर्चर करना, उनको प्रोसिक्यूट करना और उनके साथ बहुत ही भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाला रवैया इन लोगों ने अपनाया. उनके साथ बहुत ही ज्यादा जाति की गई, उनको मारा पीटा गया, उनको उस देश से निकालने की हर संभव कोशिश की गई. Sri Lanka is a country inhabited with the various ethnic groups, the Sinhalas, Sinhalese, Tamils, Muslims and Christians. इस तरह की कम्युनिटी रहती है. कितने कितने परसेंट है ये आप खुद से पढ़ेंगे, आप समझ में आ जाएगा. कई बार क्या होता है, सपोज दैट कि दो कम्युनिटी के लोग जब एक देश में रहते हैं, उस देश का सपोज दैट मान लीजिए कि एक कंट्री है, दैट कंट्रीज नेम इज सपोज दैट, मान लीजिए आप जर्मनी है, जैसे कि जर्मनी एक कंट्री है. जर्मनी में मान लीजिए कि दो ग्रुप रहते हैं, मान लीजिए कि ज्यूज रह रहे हैं और प्लस क्रिश्चियंस रह रहे हैं. क्रिश्चियंस पॉपुलेशन में मान लीजिए कि 75% है और ये लोग क्या है 25%. तो ये मेजोरिटी में आ गया, ये मेजोरिटी आ गई इनके पास, और ये हो गया माइनॉरिटीज. ये क्या होगा, माइनॉरिटीज. सो माइनॉरिटीज के साथ क्या प्रॉब्लम होगा कि ये लोग जो ज्यादा है संख्या में, ये इनके साथ भेदभाव का बर्ताव करेंगे, ये इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते. तो यही होता है ज्यादातर ये. तो इसमें क्या होता है, जब पॉलिटिक्स में रिलीजन घुस जाता है तो ये समस्या खड़ी हो जाती है. In a country like Sri Lanka, the adaptation of one religion as the religion of the state resulted in discrimination of the exclusion of the religions and communities. This problem of religion dictating politics is not peculiar to Sri Lanka. If in Sri Lanka the state religion is Buddhism, then the other countries such as Pakistan it is Islam, and in Italy, in Brazil it is Christianity. In India, despite being the country with the largest Hindu population of the world, we do not have a state religion. Our country chose to be a secular nation right at its inception. What happened in this story? Sri Lanka was a Buddhist country. Sri Lanka is a Buddhist country where the Tamil and the followers of other religions are not allowed to entertain.
So the Sri Lankan government decided to choose a state religion, that was Buddhism. Similarly, the Pakistan government decided to be an Islamic country. Bangladesh is an Islamic country. But India, despite having the biggest population, the largest population of Hindus in the world, that is in India, we chose to remain a secular state from the very beginning. India, a secular nation, in 1976 the term secular was added to the preamble of by the 42nd Amendment Act. This inclusion of this term gave a concrete shape of the vision of the religious tolerance of our leaders like Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. Secular India means that there is no state religion. The country neither supports nor denies any religion its rightful place. Individuals are free to follow their religious beliefs and practices as they deem fit. तो जब हमारा संविधान बना 1949 में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसको लागू किया, उस मूल संविधान में हमारे देश के प्रियम्बल में ये नहीं लिखा था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर वर्ल्ड को जोड़ा गया 1976 में जब इमरजेंसी गई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस शब्द को भारत के संविधान पर ऑफिशियली लिख दिया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया, सेकुलर वर्ड उसमें जोड़ दिया गया। पहले हम लोग सेकुलर नहीं थे, हाँ हम एक खास किसी पंथ के देश भी नहीं थे, परंतु सेकुलर भी नहीं लिखा गया था। बाद में इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगाकर सारे देश के विपक्षी नेताओं को जेलों में भर के इन्होंने सेकुलर टर्म को उस पर चिपकाया। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया फॉलोज स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन and the state. This is the separation of the religion and the state that is called the secularism. अब देश भर में सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने का, अपने धर्म के आस्था के हिसाब से उनको प्रैक्टिस करने का, पूजा पाठ करने का, अपनी इबादत करने का, प्रेयर करने का उनको हक दिया गया है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, धर्म और राष्ट्र को कैसे अलग किया जा सकता है। इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट हैज बीन डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। इस तरह से धर्म और राजनीति को अलग अलग किया गया है किन किन कारणों से। प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम, कि हर व्यक्ति की निजता का, उनके निजी स्वतंत्रता का ख्याल रखने के लिए किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड दैट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। People should be free to propagate, follow and exit their religions and to embrace another religion if they feel the need to do so. अगर कोई व्यक्ति इस्लाम फॉलो कर रहा है तो उसको इस्लाम फॉलो करने की आजादी सिर्फ नहीं है, बल्कि वो इस्लाम फॉलो भी कर सकता है, इस्लाम को प्रोपगेट भी कर सकता है, उस धर्म के बारे में प्रचार प्रसार प्रवचन तकरीर कर सकता है ताकि उस धर्म को और बढ़ाया जा सके, ये भी कर सकता है, उसको आजादी है। साथ ही साथ क्या है कि वो व्यक्ति कल जो इस्लाम फॉलो कर रहा है, कल को वो चाहे क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना तो वो कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, देश में जो लोकतांत्रिक एक हमारा ढांचा बना हुआ है इसको भी डिस्टर्ब ना किया जाए, इस तरह की व्यवस्था के लिए ऐसा किया गया है। अ डेमोक्रेटिक नेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी एंड कीपिंग दिस इन माइंड ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, इस बात का इसमें ध्यान विशेष रखा गया है। इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? द कंट्री ऑफ इंडिया वर्क्स इन वेरियस वेज टू मेंटेन इट्स सेक्युलर नेचर। भारत का जो संविधान है वो कई तरह से काम करता है, जिसमें कि भारत के जो सेक्युलरिज्म यानी कि जो हमारा जो पंथ निरपेक्षता वाला ढांचा है इसको हम लोग बनाए रखे और इसको प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म आर लिस्टेड हियर। कुछ दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इनको आप पढ़ लेंगे। नो रिलीजियस ग्रुप कंट्रोल द इंडियन स्टेट और गेट्स सपोर्ट फ्रॉम इट, कोई भी किसी भी धर्म को हमारे किसी भी धर्म को अपने देश को चलाने का ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है, और ना ही तो किसी विशेष धर्म को प्रधानमंत्री यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। इन अदर वर्ड द इंडियन स्टेट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स द रिलीजन, सभी धर्मों के प्रति ये उदासीन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म को ज्यादा सपोर्ट करो, क्रिश्चियनिटी को कम सपोर्ट करो, बुद्धिज्म को कम सपोर्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी विद्यालय में किसी भी तरह का धार्मिक इंस्ट्रक्शन, धर्म से जुड़ा हुआ किसी धर्म की पढ़ाई करता हुआ या किसी धर्म को प्रोटेक्ट करता हुआ कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी
धर्म को के लिए, चंदा वगैरह देने के लिए, डोनेशन देने के लिए उसको कंपेल यानी बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकते। तो इस तरह के कई नियम्स हैं, आप इनको पढ़ लेंगे रूल्स को तो समझ जाएंगे आप। फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स which ensure the dignity and the freedom of all of an individual. They are incorporated with the Constitution because of the universal nature. These rights had deep roots in the national struggle of the independence. Several violations of the human rights had occurred in the past under colonial rule. कई तरह के हमारे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो हमें मनुष्य की जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते थे, हमारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। हमको दिन रात ज्यादा हमारे लोगों को खटाया जाता था, जरूरत पड़ने पर चाबुक से उनकी पिटाई की जाती थी, यहाँ तक कि उनको अमानवीय तरीके से सजा देकर उनको फांसी पर भी चढ़ाया जाता था। When India was framing its constitution, जब भारत अपना संविधान बना रहा था, it also had certain international declarations in the mind such as these. कुछ यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशंस थी, जो पूरा ग्लोबल डिक्लेरेशंस थी दूसरे कंट्रीज के, उन बातों को ध्यान में रखा है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, ह्यूमन राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स, इस तरह के राइट्स का उसमें बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है इन सब चीजों को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात का ध्यान रखा कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1971, ये वहां से लिया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी लिया गया, खास ह्यूमन असेंबली 10 दिसंबर 1948 को इसने अडॉप्ट किया था। दिस डिक्लेरेशन encouraged India to adopt and enact human rights in the form of the fundamental rights in its constitution. हमारे देश में हम लोगों को ये दिया गया कुछ फंडामेंटल राइट्स। वो लोग फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, सभी को समानता का अधिकार है, सभी लोग समान है। कानून के दृष्टिकोण में कोई भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब, गोरा काला नीचा, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, बल्कि सभी लोग समान होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी, इस चीज का दूसरा है राइट ऑफ फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी किसी व्यक्ति को मजबूर करके उनसे कोई काम नहीं ले सकता, इसके बारे में खुद पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। बॉन्डेड लेबर वगैरह नहीं होगा, स्लेवरी नहीं होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एटसेट्रा, इन सब चीजों को नहीं होने के लिए इसको किया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म मानने, धर्म परिवर्तन करना, अपने हिसाब से आस्था के हिसाब से पूजा पाठ करना और धर्म को प्रैक्टिस करना, प्रोपेगेट करने का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, किसी भी व्यक्ति को क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा उसका निर्णय स्वतंत्र है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संविधान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई कानून में भूल है तो उसको सुधार करने के लिए वो अपील कर सकता है, उसके लिए प्ली कर सकता है इन द कोर्ट। ये तो समझ गए हम लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में अगले दिन इस चैप्टर को कंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू। आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना लेंगे। थैंक यू।